اگلی خبر شامل کریں گے بارسلونا سے، جہاں مسلم لیگ نون، یوتھ ونگ آزاد کشمیر اور اسپین کے کارکنان نے مریم نواز پر قاتلانہ حملے کے خلاف ہنگامی اجلاس اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اجلاس کا آغاز راجہ ساجد حسین نے تلاوت قرآن پاک سے کیا، جس کے بعد مقررین نے خطابات کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کی پاکستان میں حکومت آنے والی ہے، ان کا بوریہ بستر گول ہونے والا ہے، اور ہم جو جتنی ترقی جس طرح کے رائے صاحب نے بات کی ہے جی کہ ترقی کے مناظر طے کر رہی تھی نون لیگ، اسی طرح وہ مناظر آگے بھی طے کرے گی، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہوگا، اور ہم جتنی بھی نیب ریاضی گٹھ جوڑ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا گیا، میں تو اسے وحشیانہ کہوں گا، انسانی سلوک اس کو نہیں کہتے، اس کی ہم پورا مذمت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جن لوگوں پہ وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ان لوگ اس ایف آئی آر پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس وقت تمام لیگی قیادت کو دبایا جا رہا ہے اور وہی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ڈاکو پکڑو، بند کرو، میں نہیں چھوڑوں گا، اور این آر او میں نہیں دوں گا۔ یہ صرف اور صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک تو 2 سال کی جو کارکردگی ہے اس حکومت کی اس کو چھپانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آئندہ سال الیکشن آنے والا ہے، اور ہماری قیادت کو دبانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی یہ لوگ پلاننگ نہ کر سکیں، لیکن اللہ اور رسول کے حکم سے جس طرح پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن میں ان لوگوں کو وہاں کچھ نہیں ملا تھا، اس الیکشن میں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ کشمیری قوم بادشاہ قوم ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ 2 سال کی کارکردگی کیا ہے اس حکومت کی، اور یہ جو شروع ہے سال اس میں بھی جو کچھ یہ کریں گے وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ کہ ہمارے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک ہی ہیں جن کا نعرہ کشمیر والے بھی لگاتے ہیں، پاکستان والے بھی لگاتے ہیں، اور اوورسیز والے بھی لگاتے ہیں۔ یقیناً آج ہم جتنے بھی دوست بھائی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، ایک مدعا ہے، اور وہ مقصد اور مدعا کیا ہے کہ ہمارے قائد کی بیٹی مریم نواز شریف مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، اور ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے ان پر یہ حملہ کیا ہے اس پر جلد از جلد ایف آئی آر کاٹی جائے، اور اس پر پتھراؤ کیا گیا، اور وہ بھی حکومتی نمائندوں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اور نیب اہلکاروں کی طرف سے جو ہے یا ایک ملزم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جائے جو کہ اس پر لگائے جاتے ہیں، اور عدالت جو ہے وہ اس پر پتھراؤ کرے، اس پر ڈنڈے برسائے، ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کرے، ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ لیکن ہم ان پولیس والوں کو، ان اداروں کو مذمت نہیں کرتے، ہم اس نیازی کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جس کے آگے پر یہ کام انجام دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے ثابت کیا جائے، الزام در الزام، اور ہر وقت ان کی جو کردار کشی ہے، مسلم لیگ کے جتنے بھی جیالے ہیں، جتنے بھی قائدین ہیں، ان سب کی کردار کشی کا ایک وتیرہ بنا لیا گیا ہے کہ جس نے جو گناہ کیا ہے اسے اس کی سزا نہ ملے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الزام لگا رہے ہو ان کے پروف دو، انہیں ثابت کرو، انہیں کورٹ میں ثابت کرو۔ ہم اس چیز کا چیلنج کرتے ہیں اور اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم مریم نواز شریف صاحبہ انشاءاللہ ہمارے قائد کی بیٹی ہیں، بہادر ہیں، اور میں آپ سب کو ایک نعرہ دینا چاہتا ہوں، قائد کی بیٹی قوم کی آواز، مریم نواز، قوم کی آواز، مریم نواز، قائد کی بیٹی قوم کی آواز، مریم نواز، تیری آواز میری آواز، مریم نواز۔ تھا ایک سیاسی گورنمنٹ تھی جس کی ایک بل تھی، اور اس بل کی بنیاد پر کراچی کی روشنیوں کو واپس بحال کیا گیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو 30 سال سے رجسٹر کراچی میں موجود تھی۔
बशरत से तगड़ा डिक्टेटर कोई नहीं था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, सदर पाकिस्तान भी था। तो अगर वो कराची की रोशनियां बहाल नहीं कर सका था, तो अगर मुस्लिम लीग नून ने कराची की रोशनियों को बहाल किया तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और मैं समझता हूं कि अगर आज कराची में जो कुछ हो रहा है, एक बार फिर आप देखें कि सैलाब की कैफियत थी, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत कोई गेम खेल रही थी, उसमें लीडरशिप की सलाहियत मौजूद नहीं है, पूरे मुल्क को साथ लेकर चलने का जज्बा मौजूद नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ अपोजिशन में थे तो उसने वो बलोचिस्तान के वो लीडरशिप, बलोचिस्तान के वो लोग जो पहाड़ों पे बैठे हुए थे, उनको गले के साथ लगाया, वहां एक माहौल पैदा किया और उसके बाद उन सबको मैसी में लेके आए। और आज ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में एक सियासी अमल चल रहा है, इसके पीछे सारी मेहनत मौजूद है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहता, मुझे ये नहीं समझ आती कि सी पैक जैसा अजीज मंसूबा मुस्लिम लीग नून के दौर में आया और ये झूठे क्या करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारे जितने प्रोजेक्ट थे ये गुज़श्ता 2 साल से कंप्लीट है, सिर्फ एक माह का काम बाकी था, लेकिन इन्होंने ये किया कि सारे प्रोजेक्ट्स को रोक के 2-2 साल के, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बेचारी एक तो एजुकेशन का लेवल बड़ा सतही है और लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लोगों को बात याद नहीं रहती, तो उसका फायदा ये उठाते हैं कि वो अभी उन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हैं और वहां जाके ये नहीं कहते कि ये सी पैक का हिस्सा थे और ये नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुए। अब मैं हाल ही की आपको बात बताता हूँ, बड़ी बात थी जब सब लोग मिलकर इस बात की मजम्मत कर सकें जो पिछले दिनों में कायद मुस्लिम लीग नून, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जब पुलिस गर्दी की गई, जब उनको अदालत में पेश होना था, पहली बात तो ये है कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि सारे झूठे केस जो नवाज शरीफ साहब को सुनाए गए, जो मरियम के खिलाफ एफआईआर काटी गई, जिन केसेस में उनको डाला गया, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का दानिश्वर, पाकिस्तान का सियासी तबका, हर शख्स इस बात को बाखूबी समझता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून को दीवार के साथ लगाने की बात है, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं है। अगर इस बात पे कोई मेरिट हो, इस बात पे अगर इंसाफ को महफूज रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक के केस की जो फैसला सामने आया, जो माज़रत जजेस हजरात ने वो फैसला यूनानिमसली दिया, उसकी अगर सारी आप वो रिपोर्ट पढ़े, उसका पूरी कार्रवाई पढ़े, तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ जाती है कि न सिर्फ इस पूरे अमल में शफाफियत कोई नहीं है, इसमें इनजस्टिस है, इसमें मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, इसमें न सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, बल्कि एक जमात को ये पूरा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, ये पूरा माहौल दिया जा रहा है कि वो जमात अपनी मनमानियां कर सके, बाकी सियासी जमातों के लिए एक कला बनाए और उनको बंद कर दे। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के सियासी अमल, पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए एक खतरनाक बात है। हुकूमत डालती है कि नहती लड़की को सिर्फ उन खौफ है मरियम नवाज साहिबा दा कि अवाम समंदर ठाठे मारदा समंदर निकलदा बाहर, जो मरियम साहिबा निकलदी है, झूठे इल्जाम लगाए जाते ने, पत्थर गड्डियां च भरदे ने, समझो ये ਅਸੀਂ पुरजोर मजम्मत करते हैं इन छोटे हथकंडियां दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत दोबारा वापस आएगी और इंशाल्लाह ताला ਅਸੀਂ ऐसी सियासत नहीं करांगे ਜਿਹੜੀ ਇਹ कर रहे ने, इमरान खान ने आली सियासत कर रहा है, ਅਸੀਂ ਇਹ सियासत नहीं करनी। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह सब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ माफज पुलिसी इख्तियार करनी है, सब ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के चलना है। हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल जो है यूथ है, तो मैं यूथ को ज़्यादा टाइम देना मुनासिब समझता हूँ। 2-3 दिन में हमने ये प्रोग्राम रखा और कोरोना की वजह से मैंने सारे दोस्तों को इतला नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं अगर इतला करता तो मैं यकीन से कहता हूँ कि दरवाजे के बाहर तक आदमी है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून स्पेन के लिए, मेरे मुस्लिम लीग नून स्पेन के दोस्तों और यूथ विंग और राजा गुलबार साहब जितने दोस्त हैं, उन्होंने एक वर्क किया। हम अगर चाहें तो हम 400-500 आदमी हमें इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमने एहतियात की है। बाकी रही बात, सब दोस्तों ने तकरीरें की है और मौजू हमारा यही है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ जो दहशतगर्दी की गई है, वो नैब में पेशगी के लिए जा रही थी
उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और उस पर गन से फायरिंग की गई है। जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसका शीशा टूटा है, ये एक बोलता सबूत है। उनको रायनामा से हटाने की बहुत बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन ये साजिश इंशाल्लाह नाकाम होगी। अल्लाह ताला की एक अदालत भी है, इंशाल्लाह एक दिन इंसाफ होगा। ये नायब और न्याजी का गठजोड़ ये खत्म होकर रहेगा। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून को दबाने के लिए मुशर्रफ ने इतनी कोशिश की, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापस आए तो आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून ने बारीक तरीके से और बारीक तरीके से दोबारा इख्तियार में आई। इंशाल्लाह अभी वो वक्त भी आएगा कि मुस्लिम लीग नून दोबारा इख्तियार में आएगी। ये जितनी कोशिशें भी कर रहे मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब मेरे कादे मोहतरम के दौर में लोगों को दलील पर इंसाफ मिलता था। आज देखो मोटरवे में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उस औरत के साथ क्या जुल्म हुआ है। वो हमारी माए बहनें नहीं है। दोस्तों देखो, जो उसका पुलिस का अफिसर है वो क्या बोल रहा है कि वो गाड़ी से निकली क्यों थी। आपने हिफाजत देनी है। मोटरवे दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप देखेंगे ये हिफाजती बेहतरीन रास्ता है। रात हो दिन हो वहाँ पर पुलिस की निगरानी होती है और गरीब के लिए खाना भी आराम हो चुका है। दोस्तों देखो, आटे का क्या रेट है, चीनी कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसका जंगीर तरीन कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं काटी, नाप उसको क्यों नहीं पकड़ती। दोस्तों वो देखो इंग्लैंड में याशीर के साथ बैठा हुआ है, जिसने जहाजों में लाद कर आदमियों को पैसे देकर इसकी हुकूमत बनाई थी। वो खुद वो इकरार कर रहा है कि इस हुकूमत को मैंने बनाने में अहम किरदार अदा किया। शर्म की बात है। देखें, आज वो कहता था मैंने लोटे नहीं लेने, मैंने ये नहीं करना, आज वो सब काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कागजों में ढंग बांध रहे, कोई काम हुआ है। एक दिन मैंने देखा एक उन्होंने धमाका किया एक पहाड़ी के दरमियान में, बोलते हैं यहाँ पर एक डैम बनेगा। दोस्तों आज दिन तक वो काम ही नहीं हुआ। और इसका जो क्या नाम उसका बहू जो है जोरदार, उसकी कंपनी को ठेका दिया, आपने अपने आदमी को नवा रहे हैं। दूसरे दिन उस पर केस बन और ये इसका यही मंसूबा है कि लोगों को इसी तरीके से पीछे लगाता जाओ। और खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूँ, हमारे मुल्क में लोग खुदकुशी कर सकता हूँ, खुदकुशी करने के लिए तैयार कुछ हुआ और उन्होंने अभी तक FIR नहीं काटी। मैं इसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम हो गई। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। काजमी साहब जो हमारे साथी थे, हमारे भाई हैं छोटे, और जितने दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए उनका मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और आपने थोड़े से टाइम में हमें आकर यहाँ पर मरियम नवाज, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ,